Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 11th. We were doing trigonometry, and in the last few classes what we did the measurement of angle, then we did the finding the value of any trigonometric function at any particular angle, whether it is less than 360 or more than 360. Then we did few radian angles. Now today we will do very important, without which trigonometry cannot be done, is identities in trigonometry. 10th class में सिर्फ we were having only three identities. In class 10 we were having only three identities, that is sin square theta plus cos square theta equals to 1, then secant square theta minus tan square theta equals to 1, then cosecant square theta minus cot square theta equals to 1. These were the three identities in class 10th. But in class 11th we have lots of identities which we have to learn, without which we cannot proceed, without which we cannot do the questions of trigonometry, whether it is a solving type or a proving type. So I will write the formula, I will explain the formula type wise. So I have written here type 1. These 10 formulas are of type 1, then I will come to type 2, then type 3. Today we will do the identities only. Now the sin a plus b का ये सारे फॉर्मूले कौन से हैं? All these are a plus b a minus b, a plus b a minus b, a plus b a minus b, a plus b a minus b. This is also a plus b type, a plus b a minus b. इस पर जब आऊंगा तब डिस्क्राइब करूंगा इसको. sin a plus b sin a minus b, cos a plus b cos a minus b, tan a plus b tan a minus b, cot a plus b cot a minus b. मल्टीपल एंगल, टू एंगल्स आर देयर, मल्टीपल एंगल, साइन ए प्लस बी. ये नहीं होता कि हमने किया कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो आई विल राइट साइन ए प्लस बी एज साइन ए प्लस साइन बी. नो, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज रॉन्ग. सो साइन ए प्लस बी is given by the formula I have written here. The formula is sin a cos b plus cos a sin b. Sin a plus b is given by sin a cos b plus cos a sin b, and then sin a minus b is given by same sin a cos b plus का माइनस हो गया cos a sin b. याद करने भी आसान है. sin a plus b यहाँ प्लस a minus b यहाँ माइनस आ गया. Now cos में उल्टा होता है. cos a plus b में यहाँ पर sin में एक sin एक cos बना. cos a plus b बनता है cos a cos b minus sin a sin b. cos a cos b minus sin a sin b, and cos a minus b is given by cos a cos b plus sin a sin b. cos a plus b is this, प्लस में यहाँ माइनस आ गया, माइनस में यहाँ प्लस आ गया. तो sin a plus b sin a minus b cos a plus b cos a minus b. Then tan a plus b. Tan a plus b is given by tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. This is the formula of tan a plus b. All are of same type, a plus b a minus b. Multiple angles we are using, a and b. tan a plus b is this, then tan a minus b में यहाँ प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया. तो tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. Then cot a plus b. What is cot a plus b? तो cot a plus b is given by cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a. cot a plus b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a. And same for cot a minus b. cot a minus b क्या हो जाएगा? cot a cot b plus 1. जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, और जहां प्लस था यहां पर वो माइनस हो गया. cot b minus cot a इसके अपॉन में आ गया. तो cot a plus b is cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a. cot a minus b is cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a. Now these two formulas जो है वो tan a plus b से बने हैं. That means if I will assume this as a and this as b, so this will be tan a plus b. So this will give me tan pi by 4 tan a plus tan b. तो प्लस tan x divide by 1 minus tan a tan b. तो 1 minus tan pi by 4 into tan x. And tan pi by 4 means tan 45. Tan pi by 4 means tan 45 degree, which is 1. तो 1 plus tan x upon 1 minus ये हो गया 1. 1 plus tan x upon 1 minus tan x. This is the formula. So whenever tan pi by 4 plus x comes, we can write 1 plus tan x upon 1 minus tan x. And if we are having tan pi by 4 minus x, tan pi by 4 minus x, it will give me 1 minus tan x upon 1 plus tan x by using this formula. Tan pi by 4 minus tan x upon 1 plus tan pi by 4 tan x. So 1 minus tan x upon 1 plus tan x. So in type 1 I have written these 10 formulas which we'll use in different questions to prove the questions or to solve the questions. Now I am coming to type 2. I am coming to type 2.
and the type 2 is, I am coming to type 2, and type 2 is number 11 I am writing, because वहां पर हमने 10 कर दिए थे, number 11 I am writing. 11 is the formula of 2 sin A cos B, 2 sin A cos B. Then number 12 क्या होगा भी लिखते हैं, पहले बताए तो कौन कौन से. 2 cos A sin B, 2 cos A sin B. Then number 13 2 cos A cos B. Then number 14 2 sin A sin B. अब ये होते क्या हैं, ये चारों एक टाइप के क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉस के डिफरेंट एंगल्स मल्टीप्लाई में है. यहाँ पर साइन इंटू कॉस है, यहाँ पर कॉस इंटू साइन है, यहाँ पर दोनों कॉस है, यहाँ पर दोनों साइन है. यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो विद डिफरेंट एंगल्स, वो किसमें है? मल्टीप्लिकेशन में है. और ये मुझे रिजल्ट जो देगा वो रिजल्ट चेंज कर देगा, उसको चेंज कर देगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में. तो यही इसका पर्पस होता है, मल्टीप्लिकेशन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देना. फॉर्मूला होता है 2 sin A cos B is given by sin A plus B प्लस साइन ए माइनस बी. तो यहां पर अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली हुआ ये कि ये 2 sin A cos B था, इसके बीच में तो प्रोडक्ट यहां बीच में प्लस आ गया, sin A plus B प्लस sin A minus B, एंड 2 cos A sin B will be given by sin A plus B minus sin A minus B. Then 2 cos A cos B is given by cos A plus B plus cos A minus B. cos A plus B plus cos A minus B, and 2 sin A sin B में थोड़ा सा क्या होता है, उसमें माइनस पहले आएगा, तो cos A minus B माइनस cos A plus B. ये चार फॉर्मूले हैं एक टाइप के. इसका पर्पस क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देना. मल्टीप्लिकेशन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देना. अब जो टाइप 3 होता है, अगर मैं वो यहीं पर लिखता हूं टाइप 3, तो वो होता है बिल्कुल इसका रिवर्स. टाइप 3 हो गया बिल्कुल इसका रिवर्स. रिवर्स दैट इज, अगर मैं यहीं पर लिखता हूं सपोज, तो सबसे पहले फॉर्मूला बनता है इसमें sin C प्लस sin D का, नंबर 15 फॉर्मूला बनता है sin C प्लस sin D, sin C प्लस sin D. C एंड D कर दी, यहां पर A एंड B यूज कर रखा है, इसलिए sin A प्लस sin B भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. I can use sin A plus sin B as well. This is not sin A plus B, which was in type 1. टाइप 1 में क्या था? sin A plus B. ये sin A plus sin B नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है. दिस इज sin C plus sin D. दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स के बीच में प्लस. दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेम बट एंगल्स आर डिफरेंट, और फंक्शंस के बीच में प्लस है, और उसमें एंगल्स के बीच में प्लस था. एक ही फंक्शन, उसमें एंगल्स के बीच में प्लस. तो टाइप 1 और टाइप 3 आर डिफरेंट. नाउ sin C plus sin D is given by, sin C plus sin D is given by 2 sin C plus D by 2 then cos C minus D by 2. ये फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली. वैसे तो all the formulas will be used, all the formulas. Number 16 I am writing is sin C minus sin D, sin C minus sin D. So sin C minus sin D is given by, पहले cos 2 cos C plus D by 2 then sin C minus D by 2. Then number 17 is given by cos C plus cos D, cos C plus cos D. That will be given by 2 दोनों cos, 2 cos C plus D by 2 again cos C minus D by 2. And 18th formula I write as cos C minus cos D, which is given by minus 2 sin, यहां माइनस आ गया, minus 2 sin C plus D by 2 again sin C minus D by 2. ये सब तीनों प्लस में जाती है, ये माइनस में. चौथे में एक्सपेक्शन है, यहां पे भी एक्सपेक्शन है, यहां भी एक्सेप्शन केस है कि भाई यहां पर A माइनस भी पहले आ गया, यहां पर बाहर इसमें माइनस आ गया. तो दिस वी हैव टू लर्न. नाउ दिस इज टाइप 2, दिस इज टाइप 3. टाइप 3 ने क्या किया? एडिशन में जो फंक्शंस थे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्या कर दिया उसको? चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन.
changed into multiplication, sin into cos, cos into sin, cos into cos, sin into sin. यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या था, एडिशन, एडिशन इंटू प्रोडक्ट, डिफरेंस इंटू प्रोडक्ट, एडिशन इंटू प्रोडक्ट, डिफरेंस इंटू प्रोडक्ट. और यहां पर क्या हुआ उसका उल्टा, प्रोडक्ट इंटू एडिशन, प्रोडक्ट इंटू डिफरेंस, प्रोडक्ट इंटू एडिशन, प्रोडक्ट इंटू डिफरेंस, बिल्कुल रिवर्स. और थोड़ा थोड़ा मैच भी करता है फॉर्मूला. अगर हम चेक करें, देखो ये है पहले साइन बाद में कॉस, देखो पहले साइन बाद में कॉस, थोड़ा चेक कर सकते हैं इसको, पहले साइन बाद में कॉस, पहले साइन बाद में कॉस. तो साइन और साइन दोनों क्या हो गया, साइन साइन, बीच में क्या है, प्लस, तो यहां प्लस आ गया. वी कैन चेक द नेक्स्ट. नेक्स्ट देखो क्या है, पहले कॉस बाद में साइन, पहले कॉस बाद में साइन, ये दोनों क्या है, साइन, बीच में क्या है, माइनस, ये दोनों क्या है, साइन, बीच में क्या है, माइनस. आगे देखो दोनों कॉस, ये दोनों प्रोडक्ट वाले कॉस, देखो यहां भी कॉस प्रोडक्ट में, यहां भी कॉस, ये भी कॉस, ये भी कॉस, बीच में प्लस, कॉस कॉस बीच में प्लस, लिंक कर रहे हैं आपस में. टू साइन है, साइन भी, देखो यहां भी दोनों साइन साइन के हैं, और बीच में क्या है, कॉस के बीच में क्या है, माइनस, दोनों क्या है, कॉस, बीच में क्या आ गया, माइनस. तो वी हैव टू लर्न दीज टू टाइप्स एज वेल. टाइप 1 वी हैव डन, टाइप 2 वी हैव डन, टाइप 3 वी हैव डन. नाउ आई एम कमिंग to the type 4. Make a note of all these formulas, make a note of all these formulas, because we will use frequently in the questions. These formulas will be used frequently in the questions, proving type or solving type. Now I am coming to type 4, and the type 4 is different type. टाइप 4 इज डिफरेंट टाइप, बट कितना हो गए थे, 10, 19th, आई एम राइटिंग 19th है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. दिस इज गिवन बाय साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. इन द सेम वे फॉर्मूला बनता है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का. ये दोनों एक टाइप के, इसलिए एक साथ लिखा रहे हैं बेटा. और ये फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर बी नहीं होता, साइन स्क्वायर बी होता है. दिस वी हैव टू रिमेंबर. दिस इज नंबर 20. These two of same time, sin a plus b into sin a minus b is given by sin square a minus sin square b, and cos a plus b into cos a minus b is given by cos square a minus sin square b. फॉर्मूले को हम रिवर्स भी यूज कर सकते हैं. This was type 4. This was type 4. Now I will do the type number 5. Type number 5. अब ब्रैकेट में याद रखते हैं, स्पेशल पर्पस क्या होता है, टू हाफ द एंगल, टू हाफ द एंगल. अब जो टाइप 5 में कराऊंगा उसमें स्पेशल पर्पस क्या है, टू हाफ द एंगल. जैसे कि नंबर 21 फॉर्मूला होता है साइन 2x का, फॉर्मूला बोलते हैं साइन 2x का या साइन 2a का. साइन 2x इज गिवन बाय 2 sin x cos x. अब इस फॉर्मूले को साइन 2x से याद नहीं करवाता मैं हमेशा याद कैसे करवाता हूं, साइन एनी एंगल. साइन एनी एंगल इज गिवन बाय 2 sin हाफ एंगल cos हाफ एंगल. जैसे कि मान लो मेरे पास मान लो ये क्या होता, साइन x है, सपोज करो. साइन x का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 sin x/2 cos x/2. ये बनेगा फॉर्मूला. दिस इज नॉट फॉर्मूला फॉर साइन 2x ओनली, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन इन जनरल. साइन एनी एंगल इज गिवन बाय 2 sin एंगल बाय 2 cos एंगल बाय 2. This is the formula for sine any angle. Sine any angle is given by 2 sin half angle cos half angle. All these formulas will be for half the angle which we are doing. Now sin 2x का एक और फॉर्मूला होता है in terms of tan, and the formula is 2 tan x upon 1 plus tan square x. Now again the formula is not only for sin 2x formula. If there will be sin x, so this will be 2 tan x/2 upon 1 plus tan square x/2. That means I can say that sin any angle is given by, this will be 2 tan angle angle by 2 divide by 1 plus tan square angle by 2. फॉर्मूला ये होता है. दिस इज द फॉर्मूला. ये नहीं कि सिर्फ ये 2x के लिए फॉर्मूला है, ये x के लिए है, ये 4x के लिए. मान लो यहाँ पर वो 10x, अगर यहाँ पर 10x है तो यहाँ आएगा sin 5x cos 5x. 2 tan 5x upon 1 plus tan square 5x.
इस तरीके से। तो साइन 2x के एंगल आप करने के दो फॉर्मूले, ऐसे आप करते हैं। तो साइन 2x के एंगल आप करने के दो फॉर्मूले, 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल, 2 tan हाफ एंगल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हाफ एंगल। दिस वाज अबाउट साइन। आई एम कमिंग टू कॉस। इन द सेम वे cos 2x के होते हैं 4 फॉर्मूलेज। cos 2x के होते हैं 4 फॉर्मूला। नंबर 1 होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दैट मींस आई कैन से इट एज इन द सेम वे, क्या बोलेंगे इसको, cos स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल। ये है cos और sin दोनों की टर्म में। देन इन टर्म्स ऑफ cos ओनली, तो 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल एंड 1 माइनस tan स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हाफ एंगल। cos 2x is cos square x minus sin square x, cos 2x is 2 cos square x minus 1, cos 2x is 1 minus 2 sin square x, cos 2x is 1 minus tan square half angle upon 1 plus tan square half angle. In all these 4 formulas, what I have done, I have halved the angle. I have halved the angle. All these formulas for used to halve the angle. अगर यहाँ पर x है तो यहाँ x by 2, यहाँ x by 2, यहाँ x by 2, x by 2, x by 2, x by 2 आएगा हर जगह, at each and every place. अब इससे जो होता है मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, मैं उसको नंबर 23 बना देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर जैसे ये 1 वहां चला गया तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, दैट 1 प्लस कॉस 23 का पार्ट 1 और पार्ट 2 बोलता हूं मैं उसको। पहले पार्ट 1 देख लो। 1 प्लस कॉस थीटा इज गिवन बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और नंबर 2 पार्ट बन जाता है 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज गिवन बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहां से अगर मैं इसको इक्वल करता हूं तो 1 यहां का प्लस का हो गया, तो 1 प्लस कॉस 2x, इन दोनों से 1 वहां का प्लस का इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। तो ये बन क्या गया एक्चुअली, ये बन गया 1 प्लस कॉस, अगर ये थीटा है ये क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर, ये इसका आधा थीटा बाय 2। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। इफ आई विल टेक दीस टू, this and this, so this and this will give me this formula. So these two are very important formulas which will use in different questions very frequently. That 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2, 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. In general, we learn it as 1 plus cos angle. 1 plus cos angle is 2 cos square half angle, 1 minus cos angle is 2 sin square. प्लस में cos पर आएगा, माइनस में sin पर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है जो कि इनसे बने हैं। हमें ये भी लर्न करना है, ये भी लर्न करना है। 21, 22, 23 ऑल दीज आर टू हाफ द एंगल। यहां भी एंगल हाफ हो गया, देखो 1 प्लस cos थीटा एंगल आधा हो गया, 1 माइनस cos थीटा एंगल आधा हो गया। नाउ आई एम डूइंग नंबर 24 फॉर्मूला इज ऑफ tan 2x टू हाफ द एंगल, ओनली वन फॉर्मूला। नंबर 24 जो भी जा रहा है, वट एवर द नंबर इज, tan 2x is given by 2 tan x upon 1 minus tan square x. Again formula is same, tan any angle. Tan any angle is 2 tan half angle upon 1 minus tan square half angle. Now I will write type C, last type, that is 2 1/3 the angle. 2 1/3 the angle. 3 formulas. Number 5, sin 3x is 3 sin x minus 4 sin cube x. If here will be sin 6x, तो sin any angle, यहां पर इसको बोलो एंगल, यहां पर आएगा 1/3 एंगल, और यहां भी आएगा 1/3 एंगल। ऐसे याद करना। sin any angle is 3 sin 1/3 एंगल minus 4 sin cube 1/3 एंगल, चाहे वो एंगल कुछ भी हो। इन द सेम वे cos 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos cube x minus 3 cos x, और 27 में tan 3x, ये सबका पर्पस सेम है भाई। cos any एंगल 4 cos cube 1/3 एंगल minus 3 cos 1/3 एंगल। tan 3x is given by 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x. These are the total identities which we will use in different questions. अगर कुछ बच गया थोड़ा मोड़ा तो वो questions के टाइम पे देख लेंगे। So this was about the identities of different trigonometric functions which we'll use in the questions. बाकी questions इस पर based बहुत सारे questions करने हैं जो हम next class से start करेंगे। आज तक हम इतना ही करते हैं। Okay, thank you.